no candidate migom no tabosar no jitia le MLA jitimu lo kolok kem la room gong emya facing emya ber jomlo mobu emya kai emya payu emya no pigungu oen go gungu oen politics है permanent mang politics है permanent mang politics है nok arem tadong mang हम गैर enam mang लोग कोनम akon party lo aye लोग कोनम akon party lo aye मुझे मने मायका दो लोग lo aye bohlang का tembe ngom Amerika tung mưa tung lu này kom lu tung nó de ke nong mưa tanam tama nong tanam kama nok ke tu aku maka hidu ada ka hidu no ba hok kalau dulung em BJP tiket dem tolong keding huak takam ngo BJP tiket dem ngo pokel lo ke la yedum ludung igela huak ye BJP tiket pokel lo ke nakamang huak lo ikai tiket dem bima teteng ngo BJP कैंडिडेट एदूदू तेतेंग। नमस्कार, सियांग न्यूज लाइव के दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कायिंग ESC हेडक्वार्टर जो कि पड़ता है सियांग डिस्ट्रिक्ट में। आज यहाँ पे हमारे आने का कारण ये है कि जो फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा जी है उन्होंने आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा है विद ताहंग तग्गू जी जो कि है रिटायर्ड IAS ऑफिसर। अगर हम तामियो तागा जी की बात करें तो वो 32 ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 बार MLA बन चुके हैं और उनका तजुर्बा एज ए मिनिस्टर एज ए स्पीकर भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम कैसा रहेगा। ngolu page tahang tagume ngolu mengke hinam candidate tarmi tamyo taga bunyi alage gagri khila anyong ko hilo ke public ana takahim lengkan bilangka emla kumdung delok ke bunyi lengkan hinam holok chat leko pe ngolu akoda kumdung bunyi alag gagri khina mem ase rupe mido emla kalik dola milik dola बीजेपी लोग 20 तरफ दे लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर है के kadung narme uruk tamut दे लोग के narme idoloya दे लोग के narme takyam tamir nolok au mem kom kumdung nolok asengana mem narme tahang tagu ke bilik dola tamyo taga ke henjek gagri khikorlo Maplar amanem laga bilang ka em laro gudu. Delo urang hupar 20 trak, Mondol Vice President 20 trak uruk tamut. De BJP loge 20 trak है, taruk tamut, bunyim ai rupe, aser udo, mipor udo emla. Maplar tugabdung delo ke de idoloya, bikom 20 trak है. BJP executive board bede Mondol Vice President Narmi Takyam Tamir ina me takam agam pe nguluk roksine rumgong 32 ke ango takar ke roksine kongmem kolok mimem kolok ango takarem pigungu bo onem gogungu bo onem gumin soinem ye bo onem kenepanem ye bo onem agam pedalok in bo onem ngolong mimem lok ngolu Dr. Yasim Engineer Yasim Kororpati Murkong Komayan Asimem nolong mula Dr. Laling Name Engineer Laling Nam si agam badalog in mado si gua gamrak badalog ngulu agam mimem situng agam badangem me ala ngulu itka barangalog dagdo inam si pigung kama gogung kamang ajo luwe bottene migo milama babu ilamang ngulung mixiam tidbun na kama nguluk tanyawem nyombun na kama rumgong tartiti nguluge engota karike mimem lok ngok tagabu 2019 no jitimilo bottene post lo cabinet bottene post lo aenge payume kom supa ka kap kamai kaing sarkule kom supa kari eri mae rumgong sarkule jomlo mobuk sarkule kom
second adu kan pama kom idong epe ngulo ngo kabalu yem lumag lulag la luken ma honorable MLA talem tabome 2014 no ngulo harido oburem bito bi doktor ko bi engineer ko bingulum takareng ngum yeji boyem la idokom 2014 no harito 2019 no ngulu bem rumgong 32 ke kursi lo MLA ngulu bonai to bonai ala bem ngulu kanama leader de heko leader de public kursi lo no agam dungala agam kabangam lujing to kam malik tu na bu agam kabangam lujing gamang ijing gamang iken gamang luken gamana dem bim koi de ko badang kamang bim lupa gruye dem ngom against lok ludungam bikom tan mem sinam kamang bik tori tango arasim kanama rumwong sarkula ati awo o anawa eke irem ega irem sina irem dana irem kotir ligla doktor porai nama engineer porai nama BA pass na MA pass na big leadership solo MLA idusim hekomala kangur tuna kangur nam kamang siom bangwom sabdung sirit bangwom sabdung payum sarkulem sabdung kaing sarkulem sabdung nogrum go badangam kalangka moton jegawam ayadung supak horticulture agriculture lo beneficiary sense nam laga pa mane beneficiary inam laga pa room go nga ai dungen badangasum pasola pangin tete beng account kom sense du kapila be highway pangin be mong edung badanga duk podo payum sarkulam kalangka 2019 dalo ngulu ge state so ge mana number 1 telena media tarasatung ke kara la biluto no candidate migom no tabosar no jitia le MLA jitimulo kolokam la room go ngamya pacing ngamya ba jomlo mobu ngamya kai ngamya payu ngamya no pigungu oen go gungu oen ngo pars MLA pa ala payum sarkulem ngo first priority lo ngo joji lam ko indak ngo bene buboy ngo gone pa boyem la taro satung ke media taro satung ke kara lo MLA honorable MLA face tora payum sarkulte ku badangkom kamang payum sarkulte ada badangko sin kamang tabi payangem pabom du simorag yangem reg bom du tai payangem pabom du payum sarkulem badamo tunea kaing sarkul sum pugungutun gogungutun ingogol itun JJ mission water supply JJ mission si prime minister के भगवान लोग डोलू डोलू ला आसी का पर लगे कोले कोलेम आसी भी पर लगे एमनाम बिनाम को मीन si talem tabo MLA imang kom bimang kom sume PhD department botene department mana PhD long migom JA AA engineer dolu dolu malang kom bilumang kom ilai politics है permanent mang politics है permanent mang politics है nok arem tadong mang हम गैर enam mang लोग akonam akon party lo aye लोग akonam akon party lo aye मुझे मने मायका दो लोग लो आये आये बोलां का दम दे दलोक होक politics lo ala hilo ke baba do holo BJP nektai ko pa he akon ai live lo ngoge mungke nama he nektai ko pa namo ko ngo he kana pangki mang hilo pangelang ko ma unundo ngokom leader ko nama he dongko dei dola he hekan agom loro dem legang ko anyong ko pobi elagi ai kajolune kom lo to ingko engo takar hem takamem kaji langka o andongkom
mirem dong kom kajila level log ebolang kam lunam doing dem kaperung lagi leader de ila ako ngologe former minister em ludung ager germang ager germam ludo holo ngok former minister hoge hime siang eung interview lang ke do dem ngot ka dung beglunam dem nom ageri mam ludo da kaila am lutonam former minister ludung ngom ageri mam lumana da amigem mingmadu ne mengkato along lu right ago maru am ludung genuine ago mam ludung ago mam sida truthful luna da luna amidem amia talemang iga dola longa kone ma begluna mai aru ago mam la muindung ko dalog lega politik Tolong keding. Ngog lupa nam agom boje ho kadung ida kom luin lama. Nolu takam kangkin dung 2019 del ngo election lo participate langok MLA HPM langok ikutuai ida kom ngo in mangkai ngom tomanam legape hari kai ida kom hari akom ngo muin hidung ngo yin hidung kai langok gumun hoina ngog yogo te yogo dolunga yogo te him togadung de kisi yo ya ane gumun irgo yogo abu hoina na toganam gida te gumun hoin te ngom olentung ballentung ina mahim ngom akhilama iem hirit bangolo poridung hiom bangu kadung iem yobu bangono sebu bangon angu ilamang hikom ngok hikom ngok erange hikom ngok abu ngok ane iem yogo ngatet ngodung ikan mang telo kadung arange telo ngo ao edu dola abu budung ku arange ane nedung ku arange mata dung ku arange ngok gumun hointem nolu takam ngok gumun hoine iem ngome akhilamang dem ahol mungkiem he mudung emele him pamangkom leader dem yela duda ken manem hilomela lunam kam kinyindung idokom lutat kumamulo ken hikumaila tinga donget hilahin ihin mang marli buli lokin ihin mang ami ako delai elai mudo kadung deme yebodak bohul lubodak bohula hina no ane no awa ngode ko tambenge ngode dune nong mudu lubo iboy kam lunako abu ko kapel lagi dong delo abu del ngokom dumun gada kum dangmun gada kum lamula hilo kom ngode yardung hilo kom ngodu yardung ngo ba hokko bela ngome omang ido kom bel dudung pasigat bel kum tu itana kor kum tu delo elo itung ido kom ngok are hol dudung hilo kom ngok address de yogo lokadung lumgong sarkul lokadung West Siang district lokadung ngolu West Siang district kumangol Siang district ijun ku pane West patom dem ngo iju ipak ala Siang likpe lagi dung dem ibom benam kam sakori ko makumana de inama district dem Siang em correction I akul debong inama dolunga ngo nok area hokkade noge duge mokom dung min ke pelagi dung nok aseng mokom se min ke pelagi dung iname ngo atele mehila moko holo igap tune ngom ami ka dung mu dung lune kom ludung no de ke eke nong mu tanam tama nong tanam kama nok ke to kuma kahido are kahido no ba hokolo dung em detu ngok ekum ali ba hokolo dunam da artificial ngok iye he ngok atuk pinni he ngok aprang he ade hol dudungan belo du ko ranga du don ngok kaila he kulo to be ngobom la hikuma heta ngok hidak ko humbin ngo mungela he ina memo ko ngolo yegap dune tagap dune no ngolu tarti turum go he emele candidate haem luna takame BJP mludu delog lega yeto nam holo ngolu guhum program lo ngolu
BJP mablarhin ius kamang BJP plekhin ius kama engolu itu iname adem mondol presiden em luyem ma plek ius ma eka ho agie me kom order kamam ludu long ikolo ngolu deke ius ma takame BJP mlukolo itu iname ho angolu huilo ngolu ngokom mayum hadumku kon nobel state executive meeting lo attend tungka state executive meeting bela ngoluk BJP ke national president JP Nadda ji attend tungka bu attend ala NK ku iname buge istene kom ngolum clear elutungka iname hujing BJP de engolo Arunachal lo assembly em kom jiki pelagi dong MPM kom jiki pelagi daw emla buk ako melutung ka delo are delo BJP delo ye kom iru hunyo kamaye muru hunyo kamaye BJP tikedem birong em delok lega edem jiki daw agiri pelagi daw emla buk declaration em kom itung ka iname BJP tikedem dolung keding huwag ta kami ng BJP tikedem ngopokel logela yedem ludung igela huwag yehin BJP tiket pokel loge nakamang huwag lo ikay tikedem bimate teng ngo BJP candidate edudu teteng ngom to huwag lo ikay BJP lok candidate katikumada konying ke 19 de lok tiket biname the election ila ako ne bita ko ye lohol katinam ien iname deg lega ngo BJP de lok BJP maplarhin ngo use nam right katu BJP plekhin ngo use nam right katu dek huwag ilahin ngo BJP Nadda ji ala bu elok pelen ke charter pelen abom la belo itanogor belo oligla Doni Polo Airport bela oligla bekke ala meeting dem eten la yala time kama la buen la tikeku personally bim yehin kari khina kama yehin lu opona kama meeting bela takamem ka to meeting bela ngolukom alage kumla he ika to la devong de ido iname huwa ngolu dedine ludohin BJP loge BJP rutum kiri lok tayo taga no hunyig MLA contest ma ka no abung kem ngom indication de ke lunam kama kari khinam kama elok leader lok kari khinam kiding ngom huwag long no leader idiem ludu are no huwag mid leader idiem la ludu ne ingo mijing ko la takam ludu iname delok lega de ngokom mu kai Madem ngom BJP tikedem bieru na komayo. No MLA ilang ko kambul ludu na komay. No agera billo huang mo oye du na komay emla. Dem ngokom kakidu na. Iname dem ngoken name abut ken name ka idu dem ngoken man. सबसे पहले दांता को जैसे क्वेश्चन रहेगा मेरा हाँ सर तो 2019 में आप एक कैंडिडेट थे हाँ। तो इस बार तागा साहब को ज्वाइन करने का कारण क्या है देखिए ऐसा है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 MLA जीत नहीं सकेगा सारा सर्वे करने का बाद तागा साहब अभी भी लीडिंग में है तो हम अन्य से उसको डिस्टर्ब करने के इस बार डील नहीं है इसलिए उसको अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं वही सीधा सीधी मतलब ऑलमोस्ट अनअपोज होकर वो निकल जा तो सर जैसे आपने डाइस में कहा एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने अपनी फैमिली को हेल्प किया तो कोई हाँ। रिलेटिव को हेल्प किया Yeah. तो इस बार आपके क्लान में क्या सपोर्ट आ रहा है क्या तागा जी के लिए आपकी तरफ से? हाँ पक्का आ रहा है हमेशा तो 100% तो नहीं आएगा उसका भी अपना रीति रिवाज के अनुसार उसका भी अपना मैट्रिमोनियल रिलेशन है या कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का मतलब साला साली या कोई भी रिलेशन हो सकता है उसके लिए हार्डली 20 to 30% माइनस होगा रेस्ट तो मेरा साथ रहेगा क्योंकि मैं अपना क्लान से सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट था और अभी भी ऐसे भी सीनियर सिटीजन है मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा क्लान को जब तकलीफ होता है मैं देखभाल करना है इसलिए मैं विश्वास करता है मेरा क्लान मेरा साथ 70% रहेगा सर ये तो रिकॉर्ड
रिपोर्ट में भी है 2019 में हाँ। जब तागा साहब एज एन कैंडिडेट थे, तब योगोंग आपका जो गांव है हाँ। उसमें लोगों ने ये डिमांड रखा था, आप रास्ता लाइए, हम 100% आपको वोट देंगे। हाँ रोक तो आ गया, हाँ। लेकिन तागा साहब उसमें भी विनिंग में नहीं थे कह रहे हैं। तो इस बार क्या होगा? इस बार देखिए, इसके लिए कोई तो ऐसा बोला होगा, लेकिन एक उस समय में एक दूसरा एक खेल खेला था, अपना क्लानिज्म, क्लान का अनुसार सब जाता है क्लानिज्म। उस बार कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ब्लेस के लिए खास कर ये लोग ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा बस्ती अभी मेरा ताकबू सिर्फ नहीं है, सारा क्लान अभी ध्यान दे रहा है। इसलिए इस बार क्या किया है, रुमगोंग टू योगोंग जो रूट बनाया, 18 किलोमीटर्स रूट बनाया, उसके लिए अभी हम दोनों को ग्रेटफुलनेस उन लोग एक्सप्रेस किया है। इसलिए न्यू ईयर में हम दोनों को इनवाइट किया, स्पेशल फंक्शन बनाया, मिथुन काट के दुनिया भर का फंक्शन किया। इनको चीफ गेस्ट, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुला करके हम लोग अच्छा खास डिस्कस भी हुआ है, पुटी पार्टी भी हुआ है। मैं सेटिस्फाइड है, मेरा बस्ती अभी भी मेरा ऊपर में थोड़ा सा भरोसा है। इसलिए मैं सोचता है अभी मेरा बस्ती खास कर तागा के लिए मेजॉरिटी जाएगा आराम से। तो सर ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अच्छा। 2019 में एज ए कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से आपने 274 वोट आपको वोट मारा गया। हाँ तागा साहब हारे थे 85 वोट से, हाँ तालंता वजह से। राइट। तो अगर उसका हिसाब करें तो तागा जी, अगर आप तागा जी के साथ उस समय होते हाँ। तो तागा जी 189 वोट से जीत सकते थे। तो उसमें आपको कुछ अंदर से भी कुछ हो रहा है कि मतलब कि गलती हो गया, ऐसा हो गया? ऐसा है, उस समय में गलती हो गया नहीं बोल सकता है हम। उस समय का माहौल अलग था। तागा साहब कंटिन्यूअस मतलब एज ए ऑनरेबल मिनिस्टर, और ये सब देख के मेरा बस्ती का थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा रिएक्टिव था। खास कर ऐसा था, मैं जब निकल गया कॉन्टेस्ट कर रहा है तो मैं भी कॉन्टेस्ट करेगा। मेरा ऐसा बात नहीं, अभी मीटिंग में मैं बोल दिया कि मेरा अराउंड 1700 वोटर्स निकाला, 350 करीब हाउसेस कवर किया मैंने। लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ, यहाँ में दुनिया भर का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, दुनिया भर का ये अनवांटेड एलिमेंट्स है, ये सब चल रहा है। ऐसे हो के मुझे लास्ट में प्रेशर दे दिया कि तागा साहब विनिंग में। तागा साहब सिर्फ 189 नहीं होगा, तागा साहब मैं अगर स्टैंड करता तो ये 350 में जीतता था। अगर मैं उनका साथ देता तो करीबन 800 to 1000 में ये जीत जाता था। लेकिन मेरा जो पार्टी है उसमें कंपोस्ट ऑफ मेनी ग्रुप्स, मैक्सिमम ग्रुप तो चला गया, बोलता है कि आप हमको इच्छा भी निकाल दीजिए, हम अभी चला जाएगा, आप नहीं मानने से भी हम चला जाएगा। सिर्फ हमको इतना भरोसा दिया ये लोग। 2024 में आपको हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपको हम लोग मदद करेगा, ये बोल के ये लोग निकल गया। हम रुका नहीं सका, क्योंकि हम सीधा बात है उस समय में फाइनेंशियली हम कुछ उन लोग को इतना 2 बार 3 बार मदद नहीं कर सकता है। ये लोग इसलिए निकल गया, इसलिए ताबा साहब का पास चला गया। इसलिए ताबा साहब एकदम जस्ट मेयर मार्जिन से जीत गया है, अदरवाइज तागा साहब जीतता था। सर ये आखिरी सवाल होगा, आपका रोल क्या रहेगा टीम तामियो तक अभी अभी? इस बार तो मेरा रोल, मैं अब पहले भी बोल दिया, ये पॉइंट सेम है। इस बार तो जब मैं आ गया तो मैं तो तागा साहब का जितना भी वर्कर्स है इसको भी मैं स्क्रीन करूँगा। मैं एज ए ऑलमोस्ट एडवाइजर हिसाब में उनको मदद करूँगा। मैं मतलब रिंग रोल प्ले करूँगा, क्योंकि मेरा अपना मतलब रिश्तेदार, मेरा अपना क्लान, मेरा अपना कम्युनिटी, सब मेरा सोसाइटी, सब मतलब 100% नहीं होने से भी मुझे सब सिंपैथी है। मैं इसलिए ये बोल दिया, चलो ठीक है, मैं एमएलए नहीं रहूँगा, अभी मैं एमएलए नहीं करूँगा, लेकिन मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मैं थोड़ा काम करूँगा। और तागा साहब जहाँ भी लेप्सेस होगा उसको मैं मॉडिफाई करूँगा और उसको मैं ऑब्जेक्शन करूँगा। इसलिए मैं उसका साथ हार्ड कोर वर्कर हिसाब में मैं रह जाऊँगा। इसलिए मैं आ गया इधर। मेरा हिसाब से अभी तागा साहब 100% श्योर जीतना ही है। अभी मैं कोशिश करूँगा, मेरा जितना एरिया है
सब मैं एरिया को तो जानता है, मैं लास्ट इलेक्शन में भी कैंपेन कर गाँव सब में मैं घुमा है। अभी मैं खास पॉकेट में मैं कैंपेन करूँगा और मेरा अपना भाई लोग है, खास वर्कर लोग है, उनको लेके मैं अभी कोशिश करूँगा 100% मेरा साथ आओ, लेकिन नहीं आने से भी तागा सबके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, जीत जाएगा तागा सब। अभी ताहल सर को तो पूछ लिया, तागू सर को तो पूछ लिया, हाँ। तमिल जी क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट आ रहे हैं एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर एंड देन 1984 से आप लेजिस्लेचर में हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो आपका जो मुद्दा था पहले बार भी जो आपका आपने रखा था कि अगर आप जीतते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर देखते हैं, तो इस बार आप क्या के ऊपर में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, किसके ऊपर करने वाले हैं अगर आप जीतते हैं? अगर हम जीतता है तो नेचुरली हम ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुअर है, क्योंकि कुछ जोग्राफिकल लोकेशन का वजह से कोई भी नेशनल हाईवे हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से पार नहीं होता है। जो भी रोड है वो लोकल रोड है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो यहाँ इतना अच्छा रोड कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। उस हिसाब से लेटरल रोड जो विलेजेस में जो रोड जाता है वो सब भी वेल कनेक्टेड नहीं हुआ है। इस सेक्टर में मैं बहुत जोर दूंगा और अभी बहुत दुख है मुझे हम लोग सब, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी इसको स्ट्रेस देना चाहिए। यहाँ पायुम सर्कुल जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इस सर्कुल हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर तक भी रोड पहुँचा नहीं है, मोटरेबल रोड पहुँचा नहीं है। इसको हम स्ट्रेस करेगा, इसको हम जोर देगा और वहाँ से, लेकिन लास्ट टाइम भी हम यहाँ में स्ट्रेस दिया था बिकॉज ऑफ स्ट्रगल। उन लोग का अपना एरिया में ऑब्जेक्शन का वजह से रोड कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। कोई बोलता है यहाँ से करो, कोई बोलता है यहाँ से करो, ग्रुप बहुत फाइट करता है। फिर डीसी ये कमिटी बैठाया है, जब कमिटी रिपोर्ट आया फाइनल हो गया यहाँ से करेगा, तो तब तक तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर इलेक्शन के बाद रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा सोचा था, इलेक्शन रिजल्ट में हार गया, तो फिर जो रोड ऑलरेडी सेंक्शन है वो तो काम शुरू होना चाहिए 5 इयर्स में कम से कम, वो भी शुरू नहीं हुआ, टेकअप नहीं हुआ, तो ऐसे दुख है। लेकिन मैं आते ही इसको हम रोड कम्युनिकेशन के लिए, पायुम सर्कुल के लिए स्ट्रेस देगा, हम कम से कम रोड पहुंचाना है उधर। और सर देखा जाए तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में कई जगह अगर कंपेयर के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रुमगोंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा बैकवर्ड है, अगर दूसरे सियांग डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो क्यों ऐसा हुआ लगता है आपको? क्योंकि आप भी थे पहले एमएलए। हाँ, वो इसलिए ऐसे हुआ कि ये जो है हम लोग वेस्ट सियांग में था, सियांग तो 2018 में ही बना है, तो हम लोग पहले सियांग वेस्ट सियांग का पार्ट में था। फिर वेस्ट सियांग तो बहुत बड़ा था, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था, तो सिर्फ रुमगोंग नहीं है, वेस्ट सियांग का बहुत पार्ट, ये टूटिंग या नहीं, ये मेसुका और आपका लेखावाली एरिया भी बहुत बैकवर्ड था। तो उस हिसाब से रुमगोंग भी एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन का वजह से वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक से नहीं चलता था, कम्युनिकेशन नहीं था। फिर ये सब को अपग्रेड करने में, ये सब को करने में बहुत समय लग जाता है। और एक भी कारण है कि जनरली रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रिपीट नहीं होता है। एमएलए को एक बार उठाएगा, दूसरा बार नमा देगा, दूसरा एमएलए आएगा, यही चलते रहा।
फिर उनका डेवलपमेंट प्लान भी कंसिस्टेंट नहीं रहा किसी का, ऐसे होते रहा और वो अभी तक चल रहा है। सर अभी जैसे आपने बता तो दिया कि आपका जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर आप अगर जीतते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा, और इवन आपने अभी शेयर कर दिया। तो अब एज ऑफ नाउ, क्योंकि आज के दिन में जो पहले आपके जो कॉम्पिटिटर थे आपके अगेंस्ट थे, वो आज आपके साथ जुड़ गए हैं। उनकी तरफ से उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर आपके साथ खड़ा रहने वाले हैं, तो उसके ऊपर में क्या कहना होगा सर आप? ये उनका तो ये तो मेरा बहुत राइट हैंड होगा, मेरा सपोर्ट अच्छा होगा और एमएलए इलेक्टेड होने में ये हमको ज़रूर मदद करेगा। ये तो कभी एमएलए नहीं था, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी में था, आईएएस ऑफिसर था, तो उनका विचार थोड़ा अलग है। उन लोग ठीक से देख के काम डिसीजन लेता है, तो ये अच्छा है। मेरा पोजीशन अभी बहुत अच्छा होगा, फिर मुझे भी गाइड करेगा ठीक से। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है ये देखिए यहाँ बहुत करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ठीक करना है। बहुत जगह में स्कूल दिपांग है, और जो हेल्थ सेक्टर है जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ पीएचसी है वहाँ डॉक्टर नहीं है। ऐसे कंडीशन है कि ये सब तो ठीक से देखना पड़ेगा। फिर हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा बर्डन है। एवरी ईयर कम से कम 32 रुमगोंग में ही 2-3,000 ये यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया है, तो ये सब बहुत बड़ा बर्डन है। ये सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। जितना अनएम्प्लॉयमेंट बर्डन बढ़ेगा इतना ही सोशल डिसयूनिटी होगा, सोशल टेंशन होगा। तो ये सब सेक्टर में हम जोर देगा, अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ हम लोग सबका पास तो लैंड है, कम से कम लैंड को भी हम लोग एक सोर्स ऑफ इनकम का हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिसाब से भी इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये सब काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा स्कीम ले आना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। और जो लोग हार्ड वर्क करना चाहता है उन लोग को मदद करना पड़ेगा। ये सब ही हम करेगा। सर लैंड का मेंशन किया, लैंड का अगर आपने मेंशन किया था, अभी सियांग में कई लोग फार्मर्स हैं, किसान हैं जो लोग खेती में डिपेंडेंट हैं। हाँ। उसके लिए आपने कुछ सोचा है या फिर आप सोच के रखे हैं सर? उसके लिए हम फार्मर्स के लिए तो बहुत स्कीम है, सोच के रखा है। हम सोचता है अभी यहाँ का फार्मर्स के लिए वो हम लोग ऑर्गेनिक टील कल्टीवेशन शुरू करना पड़ेगा। अनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। और छोटा छोटा जो एक फार्मर कर सकता है, एक फैमिली कर सकता है, वो सब स्ट्रेस करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और तो लैंड भी ठीक से यूटिलाइज होगा और फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। तो यही सब हम प्लान कर रहा है। ये सब है फार्मर के लिए मेरा विजन। सर लास्टली आप बीजेपी की भी कई बहुत पुराने लीडर हैं, अभी जो प्रेजेंट दूसरे जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी है, तो टिकट को लेकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कितना हद तक आपको लगता है कि आपको मिलेगा या फिर दूसरे जो अभी प्रेजेंट एमएलए उन्हें दिया जाएगा सर, क्या लगता है? टिकट का तो अभी तक ये ऑफिशियल कैंडिडेट बीजेपी का मैं हूँ अभी तक। फिर देखिए टिकट जो है विनिंग कैपेसिटी को देख के टिकट देता है, ऐसे टिकट अंधा मुंदा में टिकट देता नहीं है। तो इसलिए मेरा पोजीशन ठीक है और विनिंग एबिलिटी भी तो मेरा ही है।
और मैं ऑफिशियल कैंडिडेट अभी तक भी हूँ। और फिर हमारा लीडरशिप से भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको दूसरा जगह में रखेगा, आप इलेक्शन मत लड़ो, ऐसे भी कुछ इंडिकेशन नहीं है। इसलिए टिकट मिलना तय है मेरे लिए। सर हम लोग सियांग न्यूज़ टीम हम लोग कुछ दिन पहले गए थे पायुम सर्कल देखने के लिए कि वहाँ डेवलपमेंट तो एक्टिविटीज़ क्या क्या है, जैसे कि जेइंग हो गया, पीओ हो गया, दादाम और दप्पू और दुपू एंड पायुम। तो उसमें ऐसा एक कंडीशन की इलेक्ट्रिक पोल है, वायर नहीं है। आपके समय में आपने शायद सोलर पैनल दिया था, अभी वो काम नहीं कर रहा है। और जैसे रोड का आप कह रहे हैं रोड बनाएंगे, तो रोड में ऐसा है कि पीएमजेएसवाई में पॉपुलेशन मांगते हैं, नेसिट से फंड उठाएंगे तो पॉपुलेशन मांगते हैं, उसको आप कैसे टैकल करोगे? उसमें पायुम सर्कल के लिए पीएमजेएसवाई रोड का ज़रूरत नहीं है। वहाँ में 2 स्कीम ऑलरेडी है, सब बस्ती को ज्वाइन करेगा। ये लेफ्ट बैंक में मेरा समय से कंस्ट्रक्टेड ये सेंक्शन किया वाला कायिंग गासेंग गाते रोड है, ये एक सेंट्रल स्कीम है। तो वो ऑलरेडी सेंक्शन है। उसका पेज 1A 15 किलोमीटर मेरा समय में बन के पेमेंट भी हो गया और यूसी भी सबमिट हो गया। तो पेज 1B 15 किलोमीटर वो तो करके फिर पेज वाइज लेना है। तो वो मेगा बोगू गामिंग गासेंग गाते को कवर करता है। नेक्स्ट रोड जो है मीगिंग टू बुले रोड जो है, वो मीगिंग से गासेंग पायुम यो दुपू इसको कवर करता है, वो भी सेंक्शन है। और उसका 35 किलोमीटर मेरा समय में ही सेंक्शन था, पान भी आ गया था और एनआईटी होना था, इलेक्शन आ गया। तो उसमें ये 2 रोड जो है बहुत साइड में ये सब बस्ती को जुड़ता है, तो उसमें पीएमजेएसवाई का कोई ज़रूरी नहीं है। सर ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो मीगिंग से रास्ता बन रहा है अपर सियांग से, हाँ। जो गद्दे गासेंग को जोड़ रहा है, हाँ। आपको क्या नहीं लगता कि वो बहुत दूर हो जाएगा उन लोगों के लिए? वैरस ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अपर सियांग से आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको 2 दिन रास्ता लेना पड़ेगा जाने के लिए। नहीं, बेसिकली ये तो एक 2 बेसिन रिवर बेसिन को ज्वाइन करने वाला डिफेंस रोड है। तो इसमें ऐसे हुआ, वो तो बहुत समय पहले सेंक्शन हुआ था, फिर कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुआ, मीगिंग से भी शुरू हुआ, यहाँ सेइंग से भी शुरू हुआ। तो इसमें देखता है तो 10 ईयर्स में ओनली 4 किलोमीटर रोड बनाया है इस सेक्शन ये दुपू साइड में। तो ये देखिए, अरे ये तो बॉर्डर रोड से तो काम नहीं होगा ऐसे। हम अरुणाचल गवर्नमेंट को कंप्लेन किया और वो कंप्लेन दिल्ली तक चला गया। बॉर्डर रोड चेंज हो गया एज ए वर्किंग एजेंसी, नेसिट्स को इसको दिया वाला। तो नेसिट्स को देने में अभी प्रेजेंट एमएलए इसको क्या ठीक से परस्यू किया कि नहीं किया, ये सब कुछ कम्युनिकेशन गैप का वजह से अभी तक पेंडिंग है, मुझे ऐसे लग रहा है। मेरा तरफ से तो सब कुछ करके रख दिया था, यही है। गुड मॉर्निंग ऑल द मीडिया पैटर्निटी। आज का ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है 2019 का कैंडिडेट एनपीपी एमएलए कैंडिडेट श्री ताहंग ताक गुजो आज तामियो तागा का टीम में आ गया। ये खाइंग में आज इनका ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट टाइम उसको कितना वोट मिला था? लास्ट टाइम उनका तो हम एग्जैक्टली मेरा इतना रिटेंटिव माइंड नहीं है, बहुत वोट तो मिला है, वो हार का सामना करना पड़ा है। और आपका एमएलए कितना वोट से हारा था? मेरा एमएलए तामियो तागा 84 वोट से हारा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो लास्ट टाइम जो कंटेस्ट किया था आज वो
आपका एमएलए को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब 2024 इलेक्शन में मतलब आप लोग जीतने का ज़्यादा चांसेस है? जीतने का तो 101% हो गया। आप लोग उस दिन भी देखा होगा, यहाँ का जितना बड़ा बड़ा पॉपुलरिटी लीडर लोग, एक्स जेडपीसी ओपुंग जेरांग का भी उस दिन टीम ताम्योतागा में ज्वाइन हुआ है। तो आज जो हमारा 2019 का जो एनपीपी एमएलए कैंडिडेट श्री ताहंग तागु अपना टीम का साथ आज ताम्योतागा के अंदर ज्वाइन हो रहा है फिर से। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आप लोग का मौजूदा जो विधायक है उसका क्या वीकनेस क्या है कि जो आज पूरा ताम्योतागा का साथ ज्वाइन हो? देखिए, अभी जो सिटिंग विधायक का वीकनेस जो है ऐसा है, उनका जितना भी टीम का सपोर्टर है, बड़ा बड़ा लीडर लोग है, रनिंग रेस में सब लोग ओलंपिक क्वालिफाइड हो गया, उनका टीम से सब भाग गया। ये है हमारा लोकल विधायक का वीकनेस। अभी क्या क्या प्रिकॉशन देता होगा पता नहीं, उनका सब वर्कर जो भाग गया अपना कैप्टन सिटिंग एमएलए तालम ताबो जी को छोड़ के। ताम्योतागा को इसलिए भी जाना जाता है, एक समय जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है उस समय गवर्नमेंट को बदलने का भी काम करता है, और एक जो दूसरा जो लीडर है ताम्योतागा को ये भी डरता है कि कल को ये बीजेपी से जीत के आएगा तो इधर उधर लीडर को बना सकता है, फिर पार्टी को कुछ भी करवा सकता है, ऐसे भी नोटिस फैलता है। इसके बारे में आपका कुछ राय है? हाँ, एग्जैक्ट बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ऐसा है, ताम्योतागा पॉलिटिशियन है, अरुणाचल का टॉप एक पॉलिटिकल लीडर है। ऐसे गवर्नमेंट का उलट पुलट काम तो किया है बोल के हम लोग को भी सुनाई दिया है। फिर भी रियलिटी में स्टडी करने से, देखने से ताम्योतागा ऐसे कैंडिडेट, ऐसा लीडर है, कभी झूठ नहीं बोलता है, अपना काम को सही तरीका से करता है। देखिए, वो जमाना चला गया, उसमें भी ताम्योतागा सही दिशा में जाके ये सब भी काम किया है, उनका हिस्ट्री को अगर जानने से। देखिए, अभी उस समय में ताम्योतागा स्ट्रॉन्ग था, बहुत डेंजरस आदमी था, ऐसे हम लोग भी सुनने में आता है, सुनाई देता है। तब भी अभी ऐसे नहीं है, वो जमाना का ताम्योतागा नहीं है। हम जब ये टीम सपोर्टर जितना भी ये लोग हम लोग का इंस्ट्रक्शन को वो भी सुनेगा, आगे जाके पेमा कंडो का सीट में वो अपना गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट का साथ बैठने जाएगा ताम्योतागा। इस बार जो आपके प्रेसिडेंट में सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 कैंडिडेट ऑलरेडी, उसमें से बीजेपी का वर्कर्स भी है, तो सर भी काफी पुराना लीडर है बीजेपी का, तो टिकट का चांसेस कैसा है और टिकट के लिए आप लोग का किस तरह का अपील रहेगा अंतर जाना? टिकट का तो ऐसा है, टिकट तो ताम्योतागा को ही मिलना है। अभी जितना यहाँ का कंटेस्टिंग कैंडिडेट, एमएलए कैंडिडेट लोग हैं, वो लोग बीजेपी को अभी तो क्या दिया है, ताम्योतागा का बीजेपी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है वो हम बोलने से नहीं है। उस सब अरुणाचल का जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, सीएम साहब को भी जानता है, डीसीएम साहब को भी जानता है, हमारा पिताजी तापुरगा को भी जानता है, किरण रिजिजू साहब को भी जानता है, ताम्योतागा बीजेपी के लिए कितना काम करके आया है। बीजेपी अभी उनका वजह से बीजेपी अरुणाचल में स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। और टिकट तो अगर हायर अथॉरिटी से टिकट नहीं मिलेगा बोल के इंस्ट्रक्शन देने से हम लोग इलेक्शन के लिए भी अभी रेडी नहीं होना था। पूरा फुल स्विंग कैंपेन यहाँ ताम्योतागा के लिए चल रहा है, और जीतने के लिए 101% अभी कन्फर्म 100%। ये देखिए, उसका आने से पार्टी को कितना स्ट्रॉन्ग होगा और लीडर जो उनको कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया है। अभी ताहंग तागु भी अपना टीम का साथ आ गया, उनका ही लास्ट टाइम राइवल था ताहंग तागु। अभी टिकट मिल के भी तो ताम्योतागा लास्ट टाइम बेटली नहीं हारा है, इलेक्शन है, चुनाव है, रिजल्ट जो है उल्टा सीधा हो जाता है। कभी पॉलिटिक्स में इलेक्शन का रिजल्ट में नंबर 2 गेम तो नहीं होता है, नंबर 1 प्राइज ही हो जाता है। थैंक यू। तो इस बार आप लोग को कंफर्म है कि जो आपका सपोर्टर है तागा सपोर्टर हम लोग पूरा कंफर्म है कि इस बार उनको क्या कमल के लिए कमल तो 101% किल गया, ऑलरेडी किल गया। मेरा सीएम साहब के लिए हम लोग एक नंबर उनका गवर्नमेंट में बैठने के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट में काम करने के लिए ताम्योतागा को हम लोग भेज देगा यहाँ से। आखिरी सवाल एक है, रुमगोंग एक 32 रुमगोंग जो है बहुत पिछड़ा हुआ जगह, हमको ऐसे कवर मिलता है क्योंकि हमें आपको भी बहुत कवर मिलता है कि बहुत सारे ऐसे आपका सर्कल है जो अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस बार का जो इलेक्शन में आप लोग कौन सा मुद्दा को लेकर के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले? हाँ, ये बहुत बढ़िया फिर सवाल किया। देखिए, ये बार हम लोग इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना रहा है। हमारा यहाँ 4 सर्कुल है, ये पायुम सर्कुल है। पायुम सर्कुल के लिए हम लोग जो ताम्योतागा का जो समर्थ लीडर लोग है, सब हम लोग मिल के इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी बनाएगा। हम लोग पायुम सर्कुल के लिए ही काम करने के लिए रेडी है। तागा साहब कहते हैं कि
साल के लिए बनता है, तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है, सही कह रहे हैं क्या? देखिए, मेंटेनेंस के लिए एक प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट का जो फंड एलोकेशन होता है, एक सिस्टम होता है। तो ताम्योतागा का टाइम में तो पायुम सर्कल, एक्सेप्ट पायुम सर्कल को छोड़ के रोड कनेक्टिविटी तो हुआ है। अभी का जो सिटिंग विधायक जो है, मेंटेनेंस का हर 3 साल में मेंटेनेंस का प्रोसीजर चलता है, वो हम लोग भी मालूम है। लेकिन अभी जो सिटिंग विधायक यार तालेम ताबू जी, इनका बारे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये बार ताम्योतागा आ जाएगा तो फिर हम लोग मेंटेनेंस के लिए भी काम करेगा। तो प्रायोरिटी हम पहले भी बोल चुका है, काइंग के लिए, पायुम सर्कल के लिए हम लोग काम करेगा। और ये गसेंग और गाते को आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे, इस बात की? देखिए, गाते बेलिस तो तागा साहब का ड्यूरिंग तागा साहब का टाइम में रास्ता सैंक्शन हुआ है, CRF से पैसा सैंक्शन हुआ है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया है। ये बार अगर तागा साहब जीत जाएगा तो जरूर कंफर्म हम लोग 101% जोड़ देगा रास्ता को। ताम्योतागा जिंदाबाद, ताम्योतागा जिंदाबाद, ताम्योतागा जिंदाबाद, बीजेपी लॉन्ग वे, बीजेपी लॉन्ग वे, बीजेपी लॉन्ग वे।